Now, your third branch of TOC, which is automata theory, the first two branches were dealings with the problems. What is the problem? How can it be solved? How much time it is going to take to solve the problem? So, the whole focus of first two branches were on the problems itself. Now, for the third branch, instead of focusing on the problem, we are focusing on the machines which are going to solve those problems. So automata is a study of abstract machines and computational problems that can be solved using these machines. So automata basically is a machine which is going to solve your problems. These abstract machines are known as automata. Automata is a word we have given to the abstract machines जो हमारी computer problems को solve करेंगी. Any abstract machine which is able to solve a particular problem is known as your automata. No matter how small your machine is, if it is able to solve a particular problem, it is going to count as automata. For example, if my let's suppose I have created a machine which is only able to add two numbers. You give it two numbers and it is going to give you the sum of those numbers. 2 plus 2, 2 plus 5 and so on. So this machine also is a automata for me because it is able to do some computation. Understood the meaning of automata? Now automata comes from a Greek word which means something is doing something by itself. There is a machine which is going to do something all by itself. So automata is a Greek word जिसका basic meaning is the whole thing is going to get completed automatically. So from automatically we have got the word automata जिसका basic meaning is computer. Now automata theory क्या है? Automata theory is a study of these machines and the problems which can be solved by these machines. All the people who are entering late in class, बेटा online class में कैसे late आ सकते हैं? I mean, what is the reason of coming late to an online class? That to मैम 10 ज्वाइन ही minutes. नहीं हो रहा था. क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा था? ऐसे तो नहीं है, बाकी पता नहीं मैम, स्टूडेंट्स वो भी आए जीरो हैं. जीरो लिखा आ रहा था तब से. मैंने एक बार एग्जिट करके दोबारा फिर ज्वाइन किया, तब जाके थोड़ी देर बाद आया ये स्क्रीन. ऑलरेडी आप 11 मिनट्स तो लेट आए हो बेटा. चलो ठीक है, बाकी लोग दीपेश, रोहित, रोहित सिंह, रोहन सब लेट आए हैं. नेक्स्ट क्लास आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ एनीवन आफ्टर 5 मिनट्स. The problem is it creates a disturbance because I have to accept each and every student who is incoming. So I need to pause my presentation, come back to Teams, accept the student, then go back, teach. As soon as I go back, another student has sent the request. So it is breaking the flow. So next class से 10:05 के बाद 5 minutes के बाद I am not going to accept any join invitations. Now coming back to our PPT. Automata theory is a study of machines which is going to solve my problem. Now this was your first point. Second point, in machines को हम automata बोलते हैं. Third point, what is the meaning of the word automated? Anything that is getting computed automatically all by itself, उसका meaning होता है automata. Now fourth point says automata theory is closely related to formal language theory. Formal language theory हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है, but as of now अभी आप लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है? Automata theory classifies different machines on the basis of language they are accepting. That is, moving on to the next slide. This is basically your automata theory, which is also known as Chomsky classification or Chomsky hierarchy. अगर एग्जाम में आता है आपको चॉम्स्की क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करनी है या फिर चॉम्स्की हायरार्की एक्सप्लेन करनी है, तो बेसिकली आपको ये डायग्राम बनाना है और ये टेबल बनाना है. दैट्स इट. दिस कंप्लीट
थिंग इज नोन एज योर ऑटोमेटा थ्योरी। अब जो हम लोगों के सामने दो डायग्राम्स हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज डायग्राम? बेसिकली द ऑटोमेटा थ्योरी डिवाइड्स योर मशीन इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ऑटोमेटा थ्योरी ने क्या करा है, हमारी मशीन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन एंड देन अनदर ट्यूरिंग मशीन। FSA, PDA, non-deterministic Turing machine and then Turing machine. These are the 4 types of machines which have been classified in automata theory by Chomsky. Chomsky was the person who has created the automata theory. Now हमने किस बेस पे क्लासीफाई करा है हमने मशीन्स को? एवरी मशीन इज गोइंग टू रीड अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, मतलब हर मशीन एक पर्टिकुलर ग्रामर को रीड करेगी और उस ग्रामर को रीड करने वाली मशीन को एक पूरा टाइप मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर्स विच आर नोन टू अस: रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्टरी ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर एंड रिकर्सिवली इन्यूमरेबल ग्रामर। तो रेगुलर लैंग्वेज को रीड करने वाली हमारी लैंग्वेज की मशीन इज नोन एज फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की मशीन इज नोन एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। अभी आप लोगों को इन सब वर्ड्स के मीनिंग समझ नहीं आ रहे होंगे। व्हाट इज फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, व्हाट इज पुश डाउन ऑटोमेटा। TOC में एक्चुअली में हमें पूरे सिलेबस में यही सब कुछ करना है, यही हमारा पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो अभी अगर आपको इसके मीनिंग समझ नहीं आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपको एज एंड व्हेन सिलेबस गोज ऑन द मीनिंग इज गोइंग टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है? ग्रामर एंड द मशीन इट इज गोइंग टू बी रेड बाय। तो रेगुलर ग्रामर FSA, context-free grammar PDA, context-sensitive grammar non-deterministic Turing machine, recursively enumerable grammar Turing machine. तो when we understand the meaning of these grammars, तो आप लोगों के लिए बहुत easy है समझना। ये दोनों diagrams would be very easy for you to understand when we are able to study these 4 different types of grammars. Is the point clear till now? Automata theory का meaning clear है? Anybody with any problem? नो मैम। Nobody? Okay. So यहाँ तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा that was basically your history of TOC या फिर introduction to TOC. This was background of the subject theory of computation. अब इसके बाद हम लोग एक्चुअल सब्जेक्ट पे आएंगे। जो भी तक पढ़ा दैट वाज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट इज़ गोइंग टू कम इन एग्जाम, बट इट वाज सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो हमें प्रे रिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए, इट वाज दैट। नाउ स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट देर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स विच वी नीड टू नो टू अंडरस्टैंड TOC completely. These concepts are of your subject discrete mathematics. आप लोगों ने पढ़ा है? डिस्क्रीट मैथ्स तो पढ़ा होगा ना? यस मैम। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंपाइलर्स, और उसके बाद जो भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आएगा वी आर गोइंग टू ब्रश अप द स्किल्स फास्ट। नेक्स्ट इज, अच्छा, सी प्रोग्रामिंग में वंस वी राइट द कोड, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हम लोग अपना कोड लिखते हैं, कोड को सेव करते हैं .c एक्सटेंशन से फॉर C लैंग्वेज, .cpp फॉर C++। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? कंपाइल करते हैं। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाइल? मतलब कंपाइल करने का मतलब क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड? You are not audible, Aslam. Please speak loudly. Anybody? कंपाइल में क्या होता है? रन करते हैं।
run लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है मैम कंपाइलर। run और execute are same thing but compile is a different thing। तो run और compile दो बहुत different stages हैं किसी भी प्रोग्राम को चलाने की। compile का कम मतलब run करना नहीं होता। compile करके आपको कभी कंपाइल भी आंसर नहीं मिलेगा। मैम वगैरह ठीक मशीन कर देंगे। लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। चलो लेट मी टेल। कंपाइल हम लोगों ने जो भी सी लैंग्वेज में कोड लिखा है दैट कोड इज रिटन इन अ लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय अस ह्यूमंस। So your C language is a source code language. Any language which is understandable by programmers is your source code language, but computers are not able to understand these language. So what does a compiler do? It takes up your source code. Source code is taken by the compiler, and then that source code is converted into something which is known as object code. Object code is the transformed version of your source code which is understandable by the computer system। कंप्यूटर को जो कोड समझ आता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट कोड, बट वो ऑब्जेक्ट कोड हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द सेम कोड विच इज़ रिटन बाय द प्रोग्रामर। अब ये काम करने के लिए there is something which is known as compiler. So basically compiler is a program which is going to take your source code as input and it is going to give me my object code as output. This is the whole meaning of a compiler. क्लियर? कंपाइलर का मतलब प्रोग्राम को रन करना नहीं होता, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना भी नहीं होता। सो बेसिकली if I write a C program for hello world and I compile it, so compile होने के बाद I am not going to see hello world on the screen. Compile stage is only going to tell me whether there are any errors in the program or not. The only thing I am going to get is output after compilation is errors or no errors. That's it. स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड देखने के लिए आई नीड टू एग्जीक्यूट माई प्रोग्राम, रन माई प्रोग्राम। सो योर कंपाइलेशन स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम योर एग्जीक्यूशन स्टेज। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपाइलर। क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। अच्छा, are you people sitting with some notebook, pens, books, or you are just यस sitting? मैम। Yes, ma'am. So whatever extra I am telling you, all the examples which I am telling you, they are not there in your PPT. You need to make sure that you are writing all of them down for your understanding later on. Otherwise जब last में खाली ये वाली PPT आप लोग देखोगे ना, source code, compiler, object code, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है? So whatever extra I am writing, please make the notes of them. That source code हमारा input होता है, object code output होता है and so on, ताकि later stages पे आप लोगों की understanding better हो। Now compiler का meaning हम लोगों को clear है। Next is what are the steps which are being executed inside the compiler. So compilation process itself is a combination of different tasks which are getting executed inside it. Compilation भी certain steps में execute होती है, छोटे छोटे task होते हैं which are getting executed one by one. When then these tasks are completed, तब हमारे पास आता है object code. Clear? So what are the different tasks which are getting executed inside the compiler? उन टास्क को we have basically divided into two categories. First is we are going to analyze the source program. Second is we are going to synthesize the source program. So analysis and synthesis of the source program are basically two main tasks which are getting executed inside the compiler. Now furthermore, these category is divided into smaller types. Analysis is divided into three types, which is lexical analytics, syntax analytics and semantic analytics.
So your analysis stage also is in turn divided into 3 smaller steps, which is lexical, syntax and semantic analysis. And then your second broad category, which was synthesis, it is further divided into 2 types, which is code optimization and code generation. तो इस पूरी PPT में we have 5 main steps which are getting executed inside the compiler, which are written here step by step. सबसे पहले हम लोगों को लेक्सिकल एनालिसिस करना है, देन सिंटैक्स, देन सिमेंटिक. इन 3 स्टेजेस के बाद हम लोगों का एनालिसिस प्रोसीजर इज डन एंड वी हैव टू स्टार्ट विद योर विच प्रोसीजर, सिंथेसिस प्रोसीजर. सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंथेसिस प्रोसीजर विच इज कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन. समझ आ रहा है कुछ भी, और नहीं समझ आ रहा तो प्लीज यू कैन टेल मी क्लियरली, वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच. मैम ये वाला बता दो, ये समझ नहीं आया. अभी इन वर्ड्स के मीनिंग हम लोगों को एक एक करके देखने हैं. जस्ट डायग्राम समझ आया कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक नहीं. हम लोगों के पास सोर्स कोड है, ठीक है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लेट सपोज सी आउट, हेलो वर्ल्ड, सी आउट, समथिंग समथिंग एंड सो ऑन. ये हमारा सोर्स कोड होता है रिटन इन अ C++ लैंग्वेज. So your compilation is going to start by taking your source code, उसको लेक्सिकल एनालिसिस करेंगे. लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है वो अभी हम देखते हैं. अभी आप सिर्फ क्या क्या स्टेप्स हैं उस पर ध्यान दो. फर्स्ट स्टेप इज लेक्सिकल एनालिसिस. जब लेक्सिकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो वी आर गोइंग टू गो टू सिंटैक्स एनालिसिस. जब सिंटैक्स एनालिसिस हो जाएगा देन वी आर गोइंग टू गो टू सिमेंटिक एनालिसिस. ये 3 स्टेप्स होंगे. फिर सिमेंटिक्स एनालिसिस के बाद हमारे पास 4th स्टेप आएगा कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड 5th स्टेप आएगा कोड जनरेशन. तो ये कोड जनरेशन स्टेप जो है इसका आउटपुट इज गोइंग टू बी माय ऑब्जेक्ट कोड विच इज द फाइनल आउटपुट आई वांट. यहाँ पे हमारा गया था सोर्स कोड और आफ्टर माय 5th स्टेप आई हैव गॉट अ सर्टेन प्रोग्राम जो हमारे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो चुका है. दिस इज योर कंप्लीट कंपाइलेशन प्रोसेस. LA, SA, SA, CO एंड CG. अभी क्लियर है? बेटर देन द लास्ट टाइम. अभी जब हम मीनिंग देखेंगे तो और क्लियर होगा. यस मैम. श्योर एवरीवन? पढ़ रहे हो आप? Yes, ma'am. यस मैम. ओके, ठीक है. तो हम लोगों ने स्टेप्स के नेम्स देख लिए हैं, पर अब ये हर स्टेप करता क्या है दैट वी हैव टू सी. लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है? लेक्सिकल एनालिसिस इज गोइंग टू टेक योर कंप्लीट कोड और उसको वो रीड करना स्टार्ट करता है लेफ्ट टू राइट. मतलब लेट सपोज माय कोड इज void main int x equals to 5, printf hello, printf %d x and close. So this is my source code जिसको मुझे compile करना है. So the first stage of compilation which is lexical analysis, वो क्या करता है? It is going to take your source code, it is going to read your code from left to right character by character. एक एक कैरेक्टर को रीड करना स्टार्ट करेगा एंड इट इज गोइंग टू डिवाइड योर कंप्लीट कोड इन टर्म्स ऑफ टोकन्स. टोकन का मीनिंग पता है आप लोगों को? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फर्स्ट चैप्टर में हम सबसे पहले उसके टोकन्स पढ़ते हैं. कोई बता सकता है द मीनिंग ऑफ टोकन्स? पाइथन में आइडेंटिफायर
मैम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, करेक्ट? Yes, the smallest element of any programming language is token, but smallest element से मतलब smallest meaningful element. इस प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो v भी है, बट v अलोन इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. द वर्ड void is making sense. So the smallest meaningful element of any program is known as token. And token क्या क्या होते हैं हमारे पास? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स एंड सो ऑन. सो लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होगा? I am going to read the complete code and I am going to divide each and every word into its category. Void हमारी कौन सी कैटेगरी में आता है? Is void a keyword, आइडेंटिफायर है, ऑपरेटर है, कांस्टेंट है, क्या है? void is a data type और हर डेटा टाइप एक कीवर्ड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? void कीवर्ड है, मेन कीवर्ड नहीं है, ब्रैकेट्स आर ऑपरेटर्स. ठीक है, फर्स्ट लाइन डन. देन ब्रेसेस ऑपरेटर, इंट कीवर्ड x identifier equals to operator 5 constant semicolon operator. तो in this format my complete source code would be read और एक अलग टाइप की फाइल बनेगी which is going to have the token type of each and every word written in my code. Are you people able to understand what I am trying to say here? Sure. यस मैम. हमारे कोर्स में जितने भी वर्ड्स होंगे सबका रिस्पेक्टिव टोकन डिसाइड होगा. वॉइड का कीवर्ड हो गया, मेन कीवर्ड नहीं है, ब्रैकेट्स ऑपरेटर, ब्रेसेस ऑपरेटर, इंट कीवर्ड, एक्स आइडेंटिफायर इक्वल्स टू ऑपरेटर, 5 कांस्टेंट सेमीकोलन ऑपरेटर, प्रिंटफ keyword, bracket operator and so on. So lexical analysis is going to decide the token type of each and every word written in your code. This is the first thing which is it is going to do. The second thing lexical analysis is going to do is it is going to remove all the comments, all the extra spaces in your program. Whatever formatting we have done in our program to make it look रीडेबल. प्रोग्राम में हम रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग, इंडेंटेशंस, कमेंट्स करते हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर एक्चुअल प्रोग्राम, वो एग्जीक्यूट नहीं होते. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी रिमूव्ड इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ विच इज़ योर लेक्सिकल एनालिसिस. ठीक है. थर्ड इज इट इज़ गोइंग टू मेक अ कॉपी ऑफ योर सोर्स प्रोग्राम विद द एरर मैसेज. अगर कोई भी प्रोग्राम में एरर है तो इट इज़ गोइंग टू पेस्ट दोज एरर मैसेजेस इन योर सोर्स प्रोग्राम और वहीं पे यूज़र को एरर दिख जाएगा. ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना, जब भी कोई एरर आता है तो वी हैव अ लाइन नंबर एसोसिएटेड विद दैट एरर. सी प्रोग्रामिंग में अगर मैं यहाँ पे int x इक्वल्स टू 5 के बाद सेमीकोलन ना लगाऊं एंड आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो ऐसा कुछ आएगा? लाइन 3 सेमीकोलन मिसिंग यस मैम. आता है ना. तो एवरी एरर इज एसोसिएटेड विद अ लाइन नंबर. तो ये भी लेक्सिकल एनालिसिस का काम है. ईच एंड एवरी लाइन इन योर कोड वुड बी गिवन अ लाइन नंबर बाय द लेक्सिकल एनालिसिस. यहाँ तक क्लियर है? First is it is going to read your complete code from left to right. It is going to divide every word into tokens. It is going to remove all the comments and white spaces, and then it is going to show the error message अगर अभी तक कोई आया है तो. ठीक है. यस मैम. After completely doing lexical analysis, हमारे पास next step which is going to come is your सिंटैक्स एनालिसिस. सिंटैक्स एनालिसिस क्या करेगा? सिंटैक्स एनालिसिस में बेसिकली जो भी हमारे पास टोकन्स अभी आए थे
वो एक साथ पूरी एक स्ट्रिंग की तरह काउंट होंगे। मीन्स अगर हम लोग के पास लाइन थी int x इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो इसका टोकन क्या बना था? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट, ऑपरेटर। सो दिस वाज द लेक्सिकल एनालाइजर ने जो आउटपुट क्रिएट किया था फॉर दिस लाइन। Syntax analysis is going to check whether the format of this line is correct. क्या हम कीवर्ड के बाद आइडेंटिफायर लिख सकते हैं? क्या हम आइडेंटिफायर के बाद ऑपरेटर लिख सकते हैं? एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल। इफ आई राइट int equals to 5, this was written in my code. इसका लेक्सिकल एनालिसिस क्या बनेगा? कीवर्ड, ऑपरेटर, कांस्टेंट। ठीक है, यही बनेगा। आई हैव अ कीवर्ड, आई हैव अ ऑपरेटर एंड देन अ कांस्टेंट। सो सिंटैक्स एनालिसिस सॉरी, सिंटैक्स एनालिसिस स्टेज में it is going to read that a keyword is there along with a operator which is not a valid line of code. कीवर्ड के बाद हमेशा कोई भी आइडेंटिफायर आएगा और आइडेंटिफायर के बाद ऑपरेटर आता है। हम लोग इंट, फ्लोट, डबल इन सब के साथ ऑपरेटर नहीं लिख सकते। सो एज सुन एज योर सिंटैक्स एनालिसिस इज गोइंग टू आइडेंटिफाई कि इस वाली लाइन में प्रॉब्लम है, it is going to give the error message to the user. Is this clear? लेक्सिकल एनालाइजर ने जो भी पूरी फाइल बनाई थी ना, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट, इन सब के साथ, सिंटैक्स एनालाइजर उस फाइल को रीड करेगा और चेक करेगा कि जहाँ पे जो लिखा है क्या वो करेक्ट ऑर्डर में लिखा है। कहीं पे आइडेंटिफायर कीवर्ड से पहले तो नहीं लिखा, कहीं ये तो नहीं लिखा x int equals to 5. This is also incorrect. This is also incorrect. Only this is correct order. So your syntax analysis is going to check each and every ordering of the words in your of the tokens in your source program. समझ आया या नहीं आया? yes मैम आ गया। आगे बढ़ें फिर। यस मैम। ठीक है, नाउ वंस सिंटैक्स एनालिसिस भी हो गया, हम लोगों ने देख लिया कोई एरर नहीं है, सब चीज़ें अपनी प्लेस पे लिखी हैं, द ऑर्डर इज करेक्ट। द नेक्स्ट स्टेप इज सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है? जो भी हमारा कोड था उससे मीनिंग डराइव करता है। अभी तक हम लोगों ने कोड के लॉजिक, कोड के मीनिंग पे कोई ध्यान नहीं दिया। वी वर जस्ट कंसर्न विद क्या लिखा है, उसका सिंटैक्स सही है कि नहीं। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस क्या करेगा? इट इज़ गोइंग टू सी कि अगर आपके कोड में कोई भी इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन तो नहीं है। होता है ना, अगर हम लोग int x equals to 3 लिखा और बाद में if I write float y equals to x, if these are two lines of code, x equals to 3 और y equals to x, float में वैल्यू कैसे सेव होती है? 3.0 करके। सो योर सिमेंटिक एनालिसिस इज गोइंग टू चेक कि हमारे कोड में कोई भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो अगर कहीं भी इस टाइप के डेटा कन्वर्जन की ज़रूरत है, इट इज़ गोइंग टू डू दैट इन योर प्रोग्राम, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज इट इज़ गोइंग टू चेक आपने जो भी कोड लिखा है उसमें एवरी वेरिएबल, एवरी फंक्शन इज देयर इन द राइट स्कोप। स्कोप वर्ड का मीनिंग पता है सबको? यस और नो, स्कोप का मीनिंग? कोई तो हाँ ना कुछ बोलो। लोकल और ग्लोबल। हाँ जी, लोकल एंड ग्लोबल। जहाँ पे हमने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करा है वो वहीं यूज हो सकता है। दिस इज द स्कोप। अगर एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा है तो फंक्शन के बाहर आते ही वेरिएबल कैन नॉट बी यूज्ड। अगर हमने उसको ग्लोबली हर फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करा है तो इट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। तो
ये वाली जो चेकिंग है, दिस इज ऑल्सो डन बाय योर सिमेंटिक एनालिसिस। तो इट इज़ गोइंग टू चेक कि जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास हैं वो सब स्कोप में होने चाहिए, जितने भी फंक्शंस हमारे पास हैं वो सब स्कोप में होने चाहिए, जितने भी डेटा हैं वो सब करेक्ट टाइप के होने चाहिए, और अगर कन्वर्जन रिक्वायर्ड है तो वो कन्वर्जन कैरी आउट करेगा योर सिमेंटिक एनालिसिस। Basically, semantic analysis is now dealing with the logic of your program rather than just the syntax part. Understood? Yes, ma'am. ठीक है। So ये first 3 stages were the part of your source code analysis. हम लोगों ने देखा था कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक analysis होता है और यहाँ से यहाँ तक synthesis होता है। तो analysis part clear सबको। Next हम लोग आते हैं synthesis part में। synthesis part की 2 मेन स्टेजेस हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इज, इसको हम स्किप कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली हमारे सोर्स कोड और फाइनल ऑब्जेक्ट कोड से पहले भी एक कोड जनरेट होता है विच इज़ इन बिटवीन दीज टू, मतलब उसके अंदर कुछ पार्ट सोर्स कोड का होता है, कुछ पार्ट ऑब्जेक्ट कोड का होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड। ठीक है। नाउ द मेन स्टेप ऑफ योर सिंथेसिस इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब होता है? वी वांट टू मेक श्योर दैट एनीथिंग इज रनिंग एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे अगर कोई भी चीज़ काम करेगी तो इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड। तो हम लोग कोड ऑप्टिमाइजेशन स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग सोर्स कोड को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कोड मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रहा है या फिर हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कोई भी काम को करने के लिए आई हैव मल्टीपल वेज, और कोई एक तरीका ही होगा विच इज़ गोइंग टू गिव अस द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है। If I give you people certain program to calculate sum of first n natural numbers 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus till n, ठीक है, this is my program. तो some students are going to apply loop for I equals to 1, I less than equals to n, I plus plus s equals to s plus I। ठीक है, ये लूप और फिर बाद में सी आउट s। समझ आ रहा है ये क्या लिखा है? Yes, ma'am. सो दिस इज द मोस्ट बेसिक वे जो मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेंगे, विच इज ऑल्सो द राइट वे। बट वॉट इफ आई राइट n+1/2? मैथ्स में पढ़ा है ये फॉर्मूला? यस मैम। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। n यहाँ पे क्या है? जहाँ तक हमें सम कैलकुलेट करना है, तो अगर 100 तक करना है तो 100, 101/2, 50 आ गया फाइनल आंसर। तो ये वाला मेथड ज़्यादा एफिशिएंट था या फिर ये वाला मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है? n into n सेकंड plus वाला मैम। सेकेंड वाला ऑब्वियसली, इवन तो आंसर हमें फर्स्ट वाले से भी मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट मेथड है, बट सेकेंड वन वॉज योर मोस्ट एफिशिएंट आंसर। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ गोइंग टू चेक कि हमारे कोड में कोई एक्स्ट्रा लाइंस तो नहीं है जिसका कोई यूज़ तो ना हो, या फिर इज देयर एनी कोड जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो उसको कंपाइल करने का भी कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। सो any extra code, any inefficient code in your program, in your source program, is going to be removed and optimized in this step, which is your code optimization। ठीक है। दिस वॉज योर सेकेंड लास्ट स्टेप। यहाँ तक हमने अपने कोड को ऑप्टिमाइज भी कर लिया, मैक्सिमम एफिशिएंसी दे दी, सारे एरर्स रिमूव कर लिए, सबका स्कोप चेक कर लिया, टाइप, एवरीथिंग इज डन नाउ। सो द फाइनल स्टेप वुड बी कि अब हमें सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट कोड जेनरेट करना है। ऑब्जेक्ट कोड जेनरेट करने का मतलब जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं सबको उनकी मेमोरी एलोकेट करनी है, जितने भी इंटरमीडिएट इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करना है। सो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ऑल द कैलकुलेशंस विच आर देयर इन योर प्रोग्राम need to be converted into machine instructions,
all the variables which are there in your program need to be given memory. So this is your final step. जैसे ही ये step execute होगा, the complete file which we are going to get would be your object code of the source program. यहाँ पे टेस्ट को टारगेट कोड जनरेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट कोड विच इज वेयर योर कंपाइलेशन प्रोसेस एंड्स. इस डायग्राम में किसी को भी कोई डाउट यहाँ से लेके यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम. श्योर एवरीवन? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Now these were the concepts of discrete mathematics that I was talking about. आप लोगों को ये basic concepts आने चाहिए. If you people want, I can make you revise all these things, या फिर आप लोगों को खुद से पढ़ के revise करने. Choice is yours. खुद से हो जाएगा मैम. अल्फाबेट का मतलब, स्ट्रिंग लेंथ क्या होती है, कॉन्कैटिनेशन, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग. खुद से हो जाएगा मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि आधे स्टूडेंट्स खोल के ही नहीं देखेंगे पीपीटी. हो जाएगा मैम. एवरीवन? Yes, ma'am. तो ठीक है, आज का आप लोगों का टास्क इज आई एम गोइंग टू मेल यू दीज 5-6 पीपीटीज. ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है, 5-6 स्लाइड्स हैं. गो थ्रू देम. कल की क्लास में फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय आस्किंग दीज क्वेश्चंस. जब मुझे लगेगा आप लोगों ने पढ़ लिया है तभी वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द मेन टॉपिक विच इज़ योर ऑटोमेटा. कि ऑटोमेटा होता क्या है. यहाँ से हमारा एक्चुअल मैथ्स पार्ट शुरू होगा टीओसी का. ठीक है, एवरीवन कंफर्टेबल Yes, ma'am. विद द पेस, विद द पीपीटी? पीपीटी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, कम करना है? यू पीपल नीड टू बी इंटरेक्टिव. आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो. देखो अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा. मैम ठीक चल रहा है सब. सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया, यस मैम. सब समझ आ रहा है. यस मैम. Yes, ma'am. चलो ठीक है, अटेंडेंस लिस्ट में आप लोगों की डाउनलोड कर लेती हूँ. बाकी क्लासेस कैसी चल रही हैं? सब ऐसे ही ऑनलाइन टीम्स और उस पे ही हो रही हैं आप लोगों की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइम से ही होती हैं क्लासेस? Yes. Yes, ma'am. चलो ठीक है. अच्छा, अनदर थिंग फॉर योर जीपी क्लास, फॉर एवरी जीपी क्लास आई एम प्लानिंग कि आप लोगों को कोई भी पीपीटी, कोई वीडियो दी जाए. यू आर गोइंग टू सी दैट वीडियो बिफोर योर जीपी क्लास एंड देन जीपी क्लास में आई एम गोइंग टू टेक योर क्विज टेस्ट एंड समथिंग लाइक दैट. तभी आप लोग आओगे. एवरी जीपी क्लास इज गोइंग टू एड अप टू योर मार्क्स ऑफ फाइनल 100. जितनी जीपी क्लासेस अटेंड करोगे, जितने टेस्ट दोगे, जितने मार्क्स आएंगे उतने आपके फाइनल 100 में से लग जाएंगे. क्लियर है? एवरीथिंग नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट. Okay, ma'am. ठीक है, चलो. एनी डाउट्स फॉर नाउ और शेल वी कैन लीव? नो मैम. ठीक है, सो वी कैन मैम एंड आप इट. सारी पीपीटी शेयर कर देना, बस ये वाली भी है जो. जितना अभी तक पढ़ लिया है और जो Yes. आपको रिवाइज करना है वहां तक मैं सारी शेयर कर दूंगी. Okay. ओके, थैंक यू. आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन द टीम्स ओनली. टीम्स के टीओसी चैनल में फाइल जनरल में फाइल्स पे जाके आएगा. Okay, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am.